Hello students, today we will discuss parallelogram law of vector addition. If two vectors to be added, जो vector student में add करनी है, can be represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram. For example students, this is a parallelogram. Now, for example, these are vectors A and B are represented by two sides of a parallelogram. जो वेक्टर स्टूडेंट में क्या करनी है, ऐड करनी है, that is represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is represented completely both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the starting point of the vectors. This is the parallelogram student, and these two vectors A and B are represented by two sides, adjacent sides of a parallelogram. Now, this is the diagonal of the parallelogram. This is the diagonal of the parallelogram. Now, the resultant इन दोनों vectors का जो resultant है student, this is the resultant vector that is represented by diagonal of a parallelogram starting from, कहां से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ये आपका रिजल्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स, diagonal parallelogram passing to the starting point of the vectors. So this is the starting point. यहीं से स्टूडेंट वेक्टर ए ओरिजिनेट हो रहा है, इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से वेक्टर बी ओरिजिनेट हो रहा है. द रिजल्टेंट वेक्टर, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर था, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू, कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर्स. ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन क्लियर हो गई. सो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी. नाउ टू ऐड वेक्टर बी टू वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. नाउ these two vectors A and B are represented by two sides of the parallelogram, and these vectors start from point O. So O is the starting point of the vectors A and B, and these two vectors are represented by two sides of the parallelogram, adjacent sides of the parallelogram. Now this is a complete parallelogram. This is the side A, this is the first side, this is the second side. These vectors A and B are represented by two sides of the parallelogram, and these two vectors start from point O. Now this is the resultant vector, this is the resultant vector. स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, ये वाला आपका रिजल्टेंट वेक्टर, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर्स, एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. सो दीज आर द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड दिस डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाय resultant vector R is equal to vector A plus vector B. फिर से देख लीजिए स्टूडेंट. So this is the one side of the parallelogram represented by vector A. This is the second side of the parallelogram, adjacent side of the parallelogram, that is represented by vector B. Now starting point of these two vectors is O. Now this is the complete parallelogram, this is the vector A, this is the vector B, adjacent sides of the parallelogram. Now this is the complete parallelogram. Now resultant is represented by diagonal of the parallelogram, and this resultant is R vector is equal to vector A plus vector B. So diagonal represent the resultant or sum of द गिवन टू वेक्टर्स. जो हमें वेक्टर्स गिवन है, कौन से वेक्टर्स गिवन है हमें, ए एंड बी, एंड आर इज द resultant vector. R is the resultant or sum of the
two given vectors and that is represented by a diagonal of the parallelogram. Note that the resultant is same as obtained by triangle law of vectors. Student, ये वाला जो लॉ प्रूव हुआ है ये कहां से प्रूव हुआ है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन. नाउ ये मैं आपको अभी प्रूव कर देता हूं स्टूडेंट. ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है. ठीक है स्टूडेंट. नाउ दिस इज आल्सो बी because in parallelogram opposite sides are equal and parallel. So OR is equal to OP plus PR. ठीक है स्टूडेंट. दिस इज द OR is equal to OP plus PR according to triangle law of vector addition. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. पहले आपका वेक्टर O टू P गया स्टूडेंट, फिर आपका वेक्टर P टू R गया. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? O. एंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट आपका? R. दिस इज द OR. ठीक है स्टूडेंट. OR इज इक्वल टू दिस. OR इज इक्वल टू OP प्लस PR. एंड स्टूडेंट OP क्या? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A एंड PR क्या स्टूडेंट? represented by vector B and OR is represented by vector R. So vector R is equal to क्या प्रूव हो गया स्टूडेंट? वेक्टर A plus vector B. Now the two vectors are represented by adjacent sides of a parallelogram and the resultant is given by the diagonal. So this method is known as parallelogram method of vector addition. ठीक है स्टूडेंट. Next article is polygon law of vector addition. Polygon means geometry have n number of sides. This law used to obtain the resultant of more than two vectors because this is a polygon and polygon have sides more than 3. If a number of vectors, so यहाँ पे number of vectors कितने हैं स्टूडेंट? काफी ज्यादा. 5, 6, 10, 15, 20, 50, 1000, 10,000. So if a number of vectors can be represented in magnitude and direction by the sides of a polygon. पहले क्या था स्टूडेंट? ट्राइंगल लॉ में वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ में क्या है? वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. नाउ if a number of vectors, there are so many vectors represented in magnitude and direction by, अब क्या आना स्टूडेंट यहाँ पे? साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर. जितने भी आपके वेक्टर्स हैं दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर. देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. सेम टू सेम स्टूडेंट डेफिनेशन है. जैसे आपकी ट्राइंगल लॉ की थी वैसी पॉलीगन लॉ की है कि वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर. And resultant vector is represented in magnitude and direction by closing side of the polygon taken in opposite order. For example, ये स्टूडेंट आपकी polygon है. So these are so many vectors. For example, this is vector A, this is vector B. All these vectors are represented by sides of the polygon taken in same order. स्टूडेंट ये order का चल रहा है same. Vector D, vector E. For example, we are having how many vectors? 1, 2, 3, 4, 5. These are 5 vectors represented by sides of the polygon. Now, this is the closing side. This is the closing side of the polygon. And this side is represented by resultant vector R taken in opposite order. This is the same order. This is the same order and this resultant vector taken in opposite order as the order of given vectors and it is the closing side of the polygon. ठीक है स्टूडेंट. ये आपकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर दी है. सो फॉर एग्जांपल आपका वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी. नाउ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टेकन इन सेम ऑर्डर. ठीक है स्टूडेंट.
नाउ दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। इसका रिजल्टेंट स्टूडेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट, ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। नाउ वेक्टर सी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू साइड ऑफ द पॉलीगन। अब स्टूडेंट यहां पे क्या आना है, इसका रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज ए रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज ए रिजल्टेंट वेक्टर। पहले स्टूडेंट हमने ये साइड कंप्लीट की थी, ये वाली आपकी ट्राइंगल लॉ यहाँ पे लगाया था, O टू P प्लस P टू B इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट, O टू Q। सो O Q क्या आ गया स्टूडेंट आपका, OP प्लस PQ। ठीक है स्टूडेंट, OP आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर A एंड PQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर B। तो ये आपका OQ क्या आ गया स्टूडेंट, ये वाला OQ, दिस वन OQ क्या आ गया स्टूडेंट आपका, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है स्टूडेंट, these are the sides of the polygon represented by vectors A, B and C. For example, there are 3 vectors. So now first consider this triangle and apply triangle law. तो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर OQ क्या आ गया, A प्लस B स्टूडेंट। नाउ अब ये आपका यहाँ पे C वेक्टर आ गया था, थर्ड वेक्टर। नाउ दीज वेक्टर्स A, B, C, these are taken in same order and these vectors are represented by sides of the polygon. ठीक है स्टूडेंट, and this one is resultant vector, this is a same order, vector A, vector B, vector C and resultant vector taken in opposite order. अब स्टूडेंट हम ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, O to Q, Q to R। अब OR क्या होगा स्टूडेंट आपका, ये वाला OR क्या होगा, O to Q प्लस Q to R। यहां पे हमने क्या लगाया, ट्राइंगल ला। पहले हम O to Q गए, फिर हम कहां से गए, Q to R, तो क्या आ गया, O to R। ठीक है स्टूडेंट, अब OQ हम निकाल चुके हैं, ये आपका वेक्टर OQ क्या है, वेक्टर OQ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और यहां पे QR क्या है स्टूडेंट, ये आपका वेक्टर C। सो फाइनल रिजल्टेंट जो क्लोजिंग साइड है वो क्या आ गई स्टूडेंट, वेक्टर R। क्या आ गया स्टूडेंट आपका वेक्टर R, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय साइड्स ऑफ द पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। नाउ अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वेक्टर A रिप्रेजेंटेड बाय वन साइड ऑफ ए पॉलीगन, वेक्टर B रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड साइड ऑफ द पॉलीगन, वेक्टर C रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द पॉलीगन, वेक्टर D फोर्थ साइड ऑफ द पॉलीगन, वेक्टर E फिफ्थ साइड ऑफ द पॉलीगन। अब स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर क्या आना है, क्लोजिंग साइड। So this is the closing side of the polygon, vector R। तो एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, डायरेक्शन भी देख लीजिए, ध्यान से देखिए। सो इसकी डायरेक्शन स्टूडेंट क्या है, दिस वन, जो एरो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब देखना ये वेक्टर सारे जो रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ द पॉलीगन है टेकन इन सेम ऑर्डर है, ध्यान से देखना स्टूडेंट, वेक्टर A, वेक्टर B। सो दिस इज द direction of vector A and vector B, this is a taken in same order। now vector A, vector B, अब ये क्या आ गया स्टूडेंट, वेक्टर C। तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, all directions are taken in same order। अब वेक्टर D की डायरेक्शन, ये वेक्टर C की डायरेक्शन थी और ये वेक्टर D की डायरेक्शन है, बोथ वेक्टर्स A, B, C, D टेकन इन सेम ऑर्डर। ये वेक्टर A की डायरेक्शन है, ये वेक्टर B की डायरेक्शन है, ये वेक्टर C की डायरेक्शन है और ये वेक्टर D की डायरेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, टेकन इन सेम ऑर्डर, ध्यान से देखना। नाउ वेक्टर E आल्सो टेकन इन सेम ऑर्डर,
ये किसको फॉलो कर रहा है? इसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई। सो सबका ऑर्डर क्या स्टूडेंट? सेम। नाउ फाइनल अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन बट टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ये देखिए, ये टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर आ गया, दिस इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। और यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ द पॉलीगन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, एंड दिस इज द resultant vector R, which is the closing side of the polygon but taken in opposite order. So this law ये प्रूव कहां से हो रहे हैं स्टूडेंट? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। आपका पैरेललोग्राम लॉ भी किससे प्रूव किया था हमने? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। और ये पॉलीगन लॉ भी किससे प्रूव हो रहा है स्टूडेंट? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये भी आपका ट्राइंगल लॉ से प्रूव हो रहा है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड बाय वेक्टर एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर। तो एक वेक्टर ए है, उसको ऐड करना है किससे? नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है आपका? बी। तो एक वेक्टर वैसे ही लेना है और दूसरा कौन सा वेक्टर लेना है? नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर। अदर वेक्टर कौन सा था स्टूडेंट? बी। उसका क्या ले लो आप? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन क्या कर दो? ऑपोजिट। तो अब क्या आ गया? ये ए प्लस माइनस बी मीन्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड बाय, क्या डेफिनेशन आई? बाय वेक्टर एडिशन। इसको हमने डिफाइन कैसे किया है? बाय वेक्टर एडिशन। क्या किया? वेक्टर एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या स्टूडेंट? दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम ए। हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी को फ्रॉम वेक्टर ए से। सो दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी। इन दोनों को हमने क्या करना है स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा? वेक्टर ए की डायरेक्शन हमने चेंज नहीं करनी है। किसकी डायरेक्शन चेंज करनी है स्टूडेंट? बी की, क्योंकि हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है? वेक्टर बी को। ध्यान से देखना, बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? रिवर्स। इसका मतलब ये क्या बन गया? नेगेटिव हो वेक्टर, अब बी आपका क्या बन गया? माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट। सो ये क्या हो गया स्टूडेंट? अब ये दोनों क्या हो गए? ऐड हो जाएंगे, टेकन इन सेम ऑर्डर। और ये वाला जो आपका आ जाएगा क्लोजिंग साइड क्या आ जाएगी स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्लोजिंग साइड क्या आ जाएगी आपकी? रिजल्टेंट वेक्टर। और यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया? वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो क्या आ गया? ए माइनस बी। दिस इज द ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट। इफ द टू वेक्टर्स आर सेम देन वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर इटसेल्फ इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट? नल वेक्टर। दिस इज नॉट ए जीरो, दिस इज ए नल वेक्टर इफ टू वेक्टर्स आर सेम। सो नेक्स्ट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा ट्रीटमेंट आ गया स्टूडेंट? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है स्टूडेंट। और ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।